Hello, Assalamu alaikum. Myself, Zaim Ahmad Hashmi, and today I am here to elaborate you the topic of programming languages. As we all know that we are living in modern era, and during this era, all our ease and comfort depend upon technologies. During the last some decades, we have implemented a lot of technologies, but the major invention is computer, which make the human life too much easier and comfortable. As we are talking about computer is basically a dumb device to make computer able to learn, read, and to solve the problem. We have to communicate with computer. The person who is communicate with computer are basically called programmers, and the language which a user can use to communicate with computer are called programming languages. So today we are discussing about programming languages. So programming languages is basically a syntax, coded syntax used by computer programmer to communicate with computer. This type of languages is also called computer languages. मतलब कि जिस तरह टू ह्यूमंस की कम्युनिकेशन के लिए हमें किसी मीडिया या किसी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, इसी तरह अब कंप्यूटर और ह्यूमन के दरमियान कनेक्शन बनाने के लिए मतलब कनेक्शन बनाने से मुराद है कि किसी उसको कोई चीज़ सिखाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए भी हमें जो है वो लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, और उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जिस तरह अब हम बात करें जो ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं उनकी भी तो टाइप्स हैं, तो इसी तरह के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दे आर some types of programming languages. So some of the types of programming languages are machine language, assembly language, and higher level languages. And some of the examples are of programming languages are Python, Java, CSS, HTML. These languages are used for different purpose, such as Python is used for रोबोट मैकेनिक्स, मतलब मीन्स कि जो हमारे रोबोट्स वगैरह बनते हैं उनके लिए, उनमें जो उनको प्रोग्राम करने के लिए जो हमें लैंग्वेज यूज़ होती है वो पाइथन की। जावा इज़ बेसिकली अ वेरी वास्ट लैंग्वेज, and it is used for basic for many it is used for basically game development, desktop app development, and web development, and so on. There are too much uses of Java. It's a huge and vast language. Then moving towards CSS is basically used for web designing. HTML is basically used for web development, and PHP is also used for web development and designing. Then further moving toward next, what are the uses of programming languages? So there are several uses of programming languages. Basically programming languages include basically the use of programming languages included desktop app development, web development, Android app development, and web designing. Now how many programming languages exist? Now our next question is how many programming languages exist? Total number of programming languages exist are approximately 9,000, but there are only 50 programming languages which is most popular. Other languages are not in use because they are not support the syntax, and there are so many issues in other languages, so that's why these languages are not in common use. But these 50 languages included Java, CSS, C Sharp, HTML are most used languages. And talking about the most popular and vast languages is obviously Java. Most of our mobile apps and web apps are using Java. Then further we are moving toward the explanation of now further I am giving you explanation on the types of programming languages. First, machine language. A machine language is a language which is easily understand by machine. नाम से ही पता लग रहा है कि जो मशीन लैंग्वेज है वो मशीन जो है वो easily उसको अंडरस्टैंड कर लेगी, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाय यूज़र। और जो मशीन लैंग्वेज है क्योंकि वो उसके कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है, तो इसलिए क्या कहते हैं यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली नहीं है, वो बेसिकली कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है। एंड अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट अ मशीन लैंग्वेज। क्योंकि मशीन बेसिकली जब आप किसी चीज़ को, मतलब कि अगर बच्चे को बोलना ही नहीं आएगा तो वो किसी मतलब कि वो कोई चीज़ टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह जब कंप्यूटर लैंग्वेज की बात आती है, तो जब तक कंप्यूटर को बेसिक कोर लैंग्वेज ही हम उसके अंदर उससे बात नहीं करेंगे तो वो यूज़लेस चीज़ है हमारे लिए।
देन मशीन लैंग्वेज इज़ बेसिकली अ बाइनरी डिजिट कोड, मतलब कि बाइनरी डिजिट कोड से मुराद है जो मशीन लैंग्वेज है वो 0 1 फॉन्ट में होगी, स्टाइल में होगी, मतलब कि 0 1 0 0, मतलब कि इस तरह का कोड होगा जिसके अंदर 0 और 1 यूज़ होंगे सिर्फ। देन machine language due to the binary digit language, machine language is also called low level language, and machine language are basically designed by the computer hardware, means computer every hardware have different language, मीन्स के जितने भी हार्डवेयर, मतलब कि अगर कोई प्रोसेसर हमारे पास पेंटियम है, पेंटियम की जितने भी टाइप है, पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, तो हर किसी की जो है वो मशीन लैंग्वेज एक दूसरे से डिफरेंट होगी, मतलब कि बहुत डिफरेंट तो नहीं होगा लेकिन स्लाइटली डिफरेंस हर किसी लैंग्वेज में होगा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, जो मशीन लैंग्वेज है इसलिए उसको लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। अगर हम कोई भी लैंग्वेज हाई लेवल किसी तरह कोई भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, लेकिन हमें कंप्यूटर को सिखाने के लिए उसको लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करना लाजमी होगा। देन moving toward assembly language was developed by using a short English like abbreviation to represent the common element of machine code, मतलब कि मशीन लैंग्वेज तो बेसिकली एक जब यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है ही नहीं तो उसको समझना भी आसान नहीं है हमारे लिए, तो प्रोग्रामर्स ने उस मशीन लैंग्वेज को आसान बनाने के लिए, मतलब कि वो ये है कि बआसानी लोग जो हैं वो प्रोग्रामिंग कर लें, उन्होंने असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया, जो बेसिकली जिस तरह हम नॉर्मल आपस में इंग्लिश बोलते हैं उस सिंटैक्स को यूज़ करके उन्होंने ये लैंग्वेज बनाई है। और इसके अंदर जो बेसिकली ज़्यादातर जो हैं चीज़ें हैं वो इंग्लिश के एब्रीवेशंस हैं, और मतलब कि जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो भी अर्थमेटिक सिंपल ऑपरेशन है, मतलब कि उसके अंदर बाइनरी डिजिट्स वाला कोई चक्कर नहीं है। सो देर एग्जांपल्स, अगर हम मूव करें एग्जांपल्स की, तो तकरीबन अगर हम देखें, अगर एग्जांपल्स की तरफ जाएं तो IBM PC और DOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं ये असेंबली लैंग्वेज की एग्जांपल्स हैं। असेंबली लैंग्वेजेस, अब मतलब एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं असेंबली लैंग्वेज की, थोड़ी सी हम इसे एलेबोरेशन फर्दर इसको एलेबोरेट करें तो असेंबली लैंग्वेजेस इज़ यूज व्हेन देयर इज़ अ नीड ऑफ इंस्ट्रक्शन नॉट प्रेजेंट इन हाई लेवल लैंग्वेजेस, मतलब कि असेंबली लैंग्वेज से ऊपर भी लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी हम असेंबली लैंग्वेज को यूज़ तब करते हैं जब जो इंस्ट्रक्शन हैं वो हायर लेवल लैंग्वेजेस में मौजूद ना हो। एंड अ प्रोग्रामर यूज टेक्स्ट एडिटर टू क्रिएट अ सोर्स फाइल, तो जो प्रोग्रामर है वो बेसिकली टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता है सोर्स फाइल बनाने के लिए, एंड असेंबलर कैन कन्वर्ट दी सोर्स फाइल इनटू दी सोर्स कोड, मीन्स के हमें कंप्यूटर को जब सिखाना ही मशीन लैंग्वेज में है तो हम ज़ाहिर सी बात है हमारे लिए लाजमी है कि हम उस जो असेंबली लैंग्वेज है उसको भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें। और असेंबलर जो है इज़ अ बेसिकली अ कन्वर्टर विच कैन कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू लाइन बाय लाइन असेंबली लैंग्वेज इनटू ऑब्जेक्ट लैंग्वेज, मीन्स मशीन लैंग्वेज। Then assembly language is easier than machine language and it is easily understand by programmer, क्योंकि जब इंग्लिश की एब्रीवेशन की बात आ गई जो कि हम आसानी से समझ लेते हैं तो फिर हमें क्या कहते हैं वो मशीन लैंग्वेज की निस्बत तो असेंबली लैंग्वेज कंपैरेटिवली ईजियर है। एंड कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इज़ मोर एफिशिएंट एंड फास्ट दैन मशीन लैंग्वेज, मीन्स के जो कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है वो ज़्यादा फास्टली लिखा जाता है और ज़्यादा एफिशिएंट होता है, मतलब कि अब 0 1 0 0, मतलब कि अगर ये बाइनरी लैंग्वेज का कोई भी कोड है उसको समझने में और उसके लिखने में ज़्यादा गलती के चांसेस है बनिस्बत इंग्लिश की एब्रीवेशन लिखने में चांसेस कम हैं हमारे पास गलती के। then move toward higher level languages is mostly like human languages, मतलब कि जिस तरह मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ इस तरह अगर मैं जिस तरह इंग्लिश में आपसे मैं बात करूँ तो इसी तरह हम कंप्यूटर से इंग्लिश में ही बात करते हैं। इट इज़ 1000 टाइम ईजियर देन असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, तो यही बात आ जाती है जब हम अपनी मदर टंग में या वो ज़बान में बात करें जो आसान हो, जो हमें आसानी से समझ आ जाए, तो उसके लिए काम ही हर किसी के लिए आसान हो जाएगा, मतलब कि कोई भी उस चीज़ को समझ सकता है आसानी से। मतलब कि अगर मैं ये बात कहना चाहूँ कि एक बच्चा है जिसे इंग्लिश नहीं आती और मतलब कि वो अपनी उसकी मदर टंग उर्दू है, तो वो अगर उससे कम्युनिकेट हम इंग्लिश में करें तो उसके लिए बहुत मुश्किल चीज़ होगी। इसी तरह अगर हम जो चाहे अगर हमें इंग्लिश भी आती है, हमें सारी लैंग्वेज आती है, अगर हमें मशीन लैंग्वेज नहीं आती और हमसे कोई मशीन लैंग्वेज के अंदर बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कोई कम्युनिकेट हम कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। तो तकरीबन लोगों को इंग्लिश आती है और वो इंग्लिश के एब्रीवेशंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं,
तो जिसकी वजह से जो है हायर लेवल लैंग्वेजेस इज़ टू मच ईजियर, अ यूज़र कैन रीड राइट एंड अंडरस्टैंड प्रोग्राम मोर ईजियर इन हायर लैंग्वेज देन इन लोअर लैंग्वेजेस. One line of higher language usually translate into many lines of machine language code. मतलब कि जो एक डिजिट होता है ना, मतलब कि एक अल्फ़ाबेट है हमारे पास, जिस तरह ए अल्फ़ाबेट है, बी अल्फ़ाबेट है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मतलब कि बाइनरी डिजिट्स का बहुत बड़ा कोड होता है. मतलब कि अगर 150 वर्ड्स का हमारे पास जो है एक लाइन है, अगर हम उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 1000 लाइन्स से भी, इससे भी अबव कहीं जाके बन जाएगी. मतलब कि क्योंकि हर उसके पीछे एक कोड है, वो है हर वर्ड के पीछे, हर अल्फ़ाबेट के पीछे एक बाइनरी डिजिट का कोड है. इसलिए क्या कहते हैं, एक तो जो हायर लेवल लैंग्वेज है उसने मशीन लैंग्वेज को कंप्रेस्ड कर दिया है और यूज़र के लिए बहुत यूज़र फ्रेंडली है, बट ये कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है. ये बात हमने लिखनी याद रखनी है कि हायर लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट कंप्यूटर फ्रेंडली. Higher level language are much faster than assembly language and machine language, but it is not user computer friendly. It is a user friendly language, and we use compiler to convert higher level language into machine code. And without compiler, higher level languages are useless. These are just an English code. Means C प्लस प्लस को अगर हमने C प्लस प्लस में कोड लिख तो दें, अगर हम उसे कंपाइलर में नहीं लिखेंगे, it is useless. We do not do anything with this code, so we have to convert higher level language into machine languages, so that's why computer can understand the command and do a operation. देन उसके बाद क्या कहते हैं, हम जाएँ उसकी तरफ हायर लेवल लैंग्वेजेस की तरफ. तो हायर लेवल लैंग्वेजेस बेसिकली थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस से स्टार्ट होती है. मतलब कि थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, मतलब कि इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे जैसे टाइम पास होता गया इंट्रोड्यूस होती गई. एंड लास्ट अब जो हमारे पास जो बहुत ज़्यादा मतलब कि मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर पाइथन आ जाती है, CSS आ जाती है, HTML आ जाती है, जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट चीज़ों के लिए, मतलब कि वेब डेवलपमेंट के लिए. और उसके बाद आजकल एंड्रॉयड होंगे, बेसिकली जो आजकल टाइम पीरियड चल रहा है इसके अंदर हमारे पास एंड्रॉयड ऐप ज़्यादा हैं, हर किसी के पास स्मार्टफोन है. सो वी आर बेसिकली यूजिंग क्या कहते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट्स, टूल्स फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट्स एंड वेब डेवलपमेंट. So these fifth generation languages included HTML and Java are fifth generation languages, and we are basically used in these development of application and made our life easier. So basically प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो हमें क्या कहते हैं, उसका लिंक कंप्यूटर की इन्वेंशन से है, और कंप्यूटर की इन्वेंशन का लिंक ह्यूमन के कंफर्ट और ईज से. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज़ अ कोर नीड नाउ. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बगैर ना हम अपने कंप्यूटर को कोई चीज़ सिखा सकते हैं, ना हम क्या कहते हैं उस कंप्यूटर से कोई काम ले सकते हैं. सो कंप्यूटर के बगैर तो आप सबको पता है कि लाइफ बोरिंग और डिफ़िकल्ट है. सो दैट्स वाई these languages are too much important in life. So thank you for hearing me today. I hope that you will understand the basic concept behind the programming languages. Okay, Allah Hafiz.